अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा टॉपिक है N-ACETYLCYSTEINE, जिसको शॉर्टली हम नेट भी पढ़ते हैं। ये एक सप्लीमेंट फॉर्म है अमीनो एसिड एल्सिस्टीन की। अमीनो एसिड एल्सिस्टीन यूजुअली हमारी बॉडी में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। इसकी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो कि जैसे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। एमपीओज, सिरप्स, टैबलेट्स और सैचेट्स अवेलेबल हैं। एन-एसिटाइलसिस्टीन थिकनेस ऑफ म्यूकस को डिक्रीज करने के लिए यूज होता है ताकि वो इजीली कफ आउट हो सके। डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी में यूज होता है। हाई डोज टॉक्सिसिटी ऑफ एसिटामिनोफेन को रिवर्स करने में यूज होता है। कुछ इसके ऑफ लेबल यूज हैं। ऑफ लेबल यूज मींस कि जो एफडीए ने अप्रूव नहीं किए हैं बट स्टिल डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं फॉर द हेल्थ बेनिफिट्स, जिसमें आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय द प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इन पीडियाट्रिक कैंसर, plus keratoconjunctivitis sicca, and to reduce the risk of contrast nephropathy in the patients with chronic renal insufficiency in adults. Acetylcysteine provide करता है mucolytic activity by opening the disulfide bonds available in mucoproteins through its sulfidal groups, and thereby lowers the mucous viscosity of pulmonary secretions and eases the patient to cough out all of the sputum. लाइकवाइज एवरी अदर पेशेंट, हर पेशेंट जो कि नेक का पेशेंट है वो भी और मेडिकेशन ले रहा होगा, तो उनमें हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। इफ एक्टिवेटेड चारकोल इज गिवन तो क्लोज मॉनिटरिंग हमें प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि ये जिलेशन फॉर्म कर देता है जिसकी वजह से एन एसिटाइलसिस्टीन का इफेक्ट लोअर हो सकता है। कुछ वेजोडाइलेटर्स यहाँ मैंने मेंशन किए हैं, अगर उनके साथ हम नेक प्रोवाइड कराएं तो नेक इनके वेजोडाइलेटरी इफेक्ट को इंक्रीज कर देगा। जो पेशेंट्स नेक यूज कर रहे होते हैं उनके माउथ से स्लाइट ओडोर आ रही होती है। वो पेशेंट इतना फील नहीं करता जितना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो उसको डील कर रहे होते हैं उनको फील हो रहा होता है। उसके अलावा वॉमिटिंग, स्टमटाइटिस, रिनोरिया, नोसिया, ब्रोंकोस्पाज्म, चेस्ट टाइटनेस, फीवर, ड्राउजीनेस, हेमोप्टिसिस, ये सब उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि म्यूकस सिक्रेशंस को थिन करता है ताकि वो इजीली कफ आउट हो सकें, इसलिए ब्रोंकल सिक्रेशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वह बार बार वो पेशेंट कफ करके इसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करता है, तो उसकी ब्रोंकियल ट्रैक्ट पूरी इरिटेट हो जाती है, तो ये भी इसके साइड इफेक्ट्स में आ जाता है। नेट यूज करते हुए हमें कुछ कॉशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। पेशेंट्स अगर नेट यूज कर रहे हैं तो उसका कफ रिस्पॉन्स चेक करना पड़ता है, either it is okay or not okay. If it is okay, then no need to be worried. But if cough response is inadequate, then all the mucus secretion will not come out and it will still irritate your patient. Then what we have to do is only the mechanical suction if necessary. Because of accumulation of airway secretion, airway can block and still it will not good for your patient. And for this you have to clear all the airway and its secretion by endotracheal aspiration with or without bronchoscopy. Some patients with asthma or bronchospasm can develop hypersensitivity, means they are more prone for hypersensitivity with acetylcysteine as compared to the patients with non-asthma or non-bronchospasmic conditions. If the bronchospasm occurs in these patients, it can be immediately treated by administration of bronchodilator via nebulization. But if it still worsens, then discontinuation of therapy is needed. A slight disagreeable odor from their mouths comes, but still it's temporary. Some patients may receive nebulization, and for this reason, with mask, a thin, sticky film may produce on their face, but it can easily remove with water. If your bottle is left open, a chemical reaction will develop a thin purple colored layer on its mouth, but no problem, it doesn't affect a drug safety or efficacy.
Here are patient of acute asthma or documented hypersensitivity with NAC, then it is contraindicated in these patients. Be careful. Acetylcysteine की pregnancy category B है, this means it is safe and doesn't affect your fetus or mother in any harmful way. Lactation में it is unknown whether it is secreted in your milk or not. Thereby use with caution. If it's too much necessary, use it. Otherwise, please avoid. फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम N-acetylcysteine की देखें तो ये अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती है 5 to 10 मिनट्स में। डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट कंडीशंस की वजह से वेरी करती है, बट इसका पीक प्लाज्मा टाइम 1 to 2 आवर होता है। 80% ही प्रोटीन बाउंड है, मेनली लिवर मेटाबोलाइज करता है और इसकी एलिमिनेशन थ्रू द यूरिन होती है। सो गाइस, टिल हियर मैंने आपको प्रोवाइड किया है एक रैपिड रिवीजन ऑफ एन एसिटाइलसिस्टीन। आपने नोट किया होगा मैंने यहाँ डोसेज शो नहीं की, ना ही डिस्कस की है, बिकॉज अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपको एक रैपिड रिवीजन चाहिए होता है विद इन शॉर्ट टाइम 5 to 10 मिनट्स, ना कि डिटेल स्टडी। और डोसेज एक ऐसा डोमेन है, उस डोमेन में आपको एक प्रॉपर एक्सपर्टीज चाहिए होती है। डोज आपको ऐसा रैपिड रिवीजन नहीं, आपको डोज परफेक्ट आनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। और वीडियो लेक्चर हम देखें तो एक रैपिड रिवीजन होता है, इसलिए मैंने डोजेज यहाँ कवर नहीं की, सिर्फ एक रिव्यू दिया है इस मेडिसिन का। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूँगी। अगर आप लाइक करेंगे तो और इसी तरह मैं वीडियोस अपलोड करती जाऊँगी फॉर योर ईज, फॉर योर रैपिड रिवीजन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।